Assalamu alaikum students of class 8. How are you all? Hopefully you all will be fine students. Okay students, now today we are going to start our chapter Mariam's letter. It is my lecture number 3B in English literature. Okay, English literature lecture number 3B, Mariam's letter. Okay, now today we are going to study page number 77, but before it before starting the lecture I would like to share a good thought with you. The good thought is that say good words, think good thoughts and do good deeds. Okay, say good words, think good thoughts, do good deeds. यानी अच्छे अल्फाज बोलो, अच्छी बातें सोचो और हमेशा अच्छे काम करो. So it is the thought of the day. Okay students, now we will move towards our today's lecture, Mariam's letter. But before starting today's lecture, I would like to recall the previous story. In this lesson we have studied, we know that in the main character of this story is an old man who was used to go towards the post office in the winter season while he was shivering, but he daily went there and he was waiting for a special letter from his daughter Mariam, who got married with a soldier man, and after marriage she went towards the Punjab, and since the last 5 years the old man did not receive any news from his daughter, so that's why he was worried. He was very worried. He was too much worried about his daughter that he left the hunting. Hunting was his passion, his obsession, but he left his obsession because he was not peaceful, he was not calm, he was worried, and he was not satisfied by his life. Many men in the post office, many workers in the post office made fun of him. They used to play with him, with his feelings. It was not the right behavior of them, but it all happened with him, and he was facing all these things with patience and with hope, and he did not lose heart, and he tried to he kept continued to go towards the post office with hope and with faith that once a day he would find the letter from his daughter. Now after this story, I would like to move towards today's lecture. Now today we will study the page number 77, but here we are starting from the page number 76, last two lines. Okay, last para, we are starting from last para, then we will move towards the page number 77. Okay students, so please open your books and look at the page number 76, and now I am starting the story from the page number 76. Students, please look at the page number 76. I am starting from last two lines of page number 76. Look at the lines. Ali became very lonely. I think you have got it. Ali became very lonely. Next para, Ali became very lonely. वेरी लोनली. अली जो है बहुत ज़्यादा लोनली हो गया था, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, अकेला फील कर रहा था अपने आप को. यू कैन सी लोनली, ठीक है ना. लोनली मीन्स अकेला, तन्हा, अपने आप को बहुत तन्हा फील कर रहा था. द हंटर्स इंस्टिक्ट वॉज स्टिल देयर. ठीक है, हंटर की जो इंस्टिक्ट थी, इंस्टिक्ट मीन्स उसका जो लाइक जो शौक था उसका, लाइक उसका जो इंस्टिक्ट मीन्स यू कैन से कि उसके जो उसके जो शौक था अंदर से, ठीक है ना. यू कैन से अ पावरफुल इम्पल्स दैट फील्स नेचुरल रेदर देन रीज़न. ठीक है ना, यानी उसकी जो बहुत ज़्यादा उसकी जो गहरी ख्वाहिश थी, शौक़ था उसका जो हंटिंग की तरफ, वो अभी तक उसके अंदर था उसके. ठीक है, वो भले ही आजकल हंटिंग ज़्यादा नहीं कर रहा था क्योंकि उसका दिल परेशान था, वो परेशान था अपनी बेटी की वजह से, लेकिन जो है उसका जो शौक़ वो अपनी जगह पर मौजूद था. ठीक है, बट द थ्रिल फेल्ट बाय अ
स्पोर्ट्समैन हैड डिसअपियर, ठीक है। वो उसकी हंटर की जो इंस्टिंक्ट थी, जो शौक था, जो जज्बा था, वो अपनी जगह पे बाकी था, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन की जो लाइक एक्टिवनेस होती है, थ्रिल होती है, ठीक है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। डिसअपियर मीन्स ख़त्म हो गई थी, गायब हो गई थी उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान मेंटली रिलैक्स होता है तो सब अपने शौक़ की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ, अपने काम की तरफ अच्छे से देख रहा होता है। जब वो मेंटली परेशान होता है, ठीक है, दिल बेसुकून होता है, तो ज़ाहिर उसको अपने कामों की तरफ ऐसे अटेंशन देना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी उसकी स्पोर्ट्समैन थ्रिल थी वो उसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत परेशान था अपनी बेटी की वजह से, ठीक है। नॉट कुड ही लव एट द bewildered terror of the young partages barefoot of their पेरेंट्स, ठीक है ना। वो हंस भी नहीं सकता था, ठीक है ना, वो बिल्कुल हंस नहीं सकता था। जिस तरह के इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पार्टिजेस होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिजेस हो, तीतर हो, उनको जो है अपने पेरेंट्स के एकदम से खो जाने का डर हो, ठीक है, एकदम से उनके गुम हो जाने का, उनके खो जाने का डर हो, तो वो किस तरह से उनकी कंडीशन हो जाएगी, उसकी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन थी कि वो उस कंडीशन की वजह से वो हंस भी नहीं सकता था। ओके, bewildered मीन्स हैरत ज़दा, हैरत ज़दा, हैरत से, ठीक है ना। टेरर मीन्स खौफ, यानी वो इतना ज़्यादा हैरत ज़दा और खौफ ज़दा था, वो हंस नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह के कोई पार्टिजेस जो है वो हैरत और खौफ से, जब उनके पेरेंट्स के खो जाने का डर हो। बेरफिट मीन्स लाइक हैविंग लॉस्ट अ लव्ड वन थ्रू, ठीक है ना, यानी कि थ्रू डेथ, यानी किसी अगर जैसे पार्टिजेस को डेथ के थ्रू, पार्टिजेस को डर हो कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी और उनको खो देंगे, तो किस तरह से उनकी कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन उसकी शिकारी अली की थी, कि वो उस खौफ और हैरत की वजह से वो डर भी नहीं सकता था, उसको समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, कि उसकी बेटी कहाँ है, क्यों उसको कोई उसकी न्यूज़ नहीं मिल रही, तो वो बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान था। ओके स्टूडेंट्स, इस पैरा में हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, लाइक देयर इज अ वर्ड bewildered, ठीक है, दैट इज़ द हैरतज़दा, खौफज़दा, हैरतज़दा, ठीक है ना, टेरर खौफ, ठीक है, और बेरफिट यानी किसी चीज़ को डेथ के थ्रू खो देने का खौफ, ठीक है, ये खौफ, इनके से बेरफिट खौफ, ऐसा खौफ ख़ास किस्म का खौफ जिसमें किसी को अपने किसी प्यारे को खो देने का खौफ हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बेरफिट। यानी पार्टिसिपेंट्स को जैसे अपने पेरेंट्स के खो देने का खौफ हो, तो किस तरह से वो हैरतज़दा और खौफज़दा हो जाएंगे, इस तरह से वो कंडीशन उसकी शिकारी वाली की थी, जिसकी वजह से वो हंस भी नहीं सकता था। ही गेव अप हंटिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम रिफ्लेक्टिंग अपॉन लाइफ एंड एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द लश ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, उसने हंटिंग करना छोड़ दिया था और वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारा था जैसे कि वो ज़िंदगी को जो है, ज़िंदगी की रिफ्लेक्शन को देख रहा है और ज़िंदगी की खूबसूरती को देख रहा है, और जो है जहाँ वो रहता था वहाँ पे जो ग्रीन फील्ड्स हैं, उन हरे भरे जो ग्रीन फील्ड्स हैं, लश ग्रीन फील्ड्स भी हरे भरे ग्रीन जो खेत हैं, उनकी खूबसूरती को एडमायर करते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका दिल जो है वो दुखी था, तो इसलिए उसने अपना हंटिंग का शौक़ भी छोड़ दिया था, जो कि उसके लिए बहुत एक पैशन था, उसका एक बहुत बड़ा शौक़ था, उसके लिए स्ट्रेंथ थी उसके लिए, तो उसने उसको भी छोड़ दिया था, ठीक है। he began to understand the meaning of love and separation, ठीक है, और उसको समझ में आना शुरू हो गया था कि लव और सेपरेशन की क्या मीनिंग होते हैं, यानी मोहब्बत क्या होती है और मोहब्बत के बाद अलग हो जाना क्या होता है, उसके जो मतलब है वो उसको समझ में आना शुरू हो गया था। ज़ाहिर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, और इतनी मोहब्बत के बाद अचानक से जो वो उससे सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है, और उसकी कोई ख़बर ही नहीं, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत तकलीफदेह और बहुत ज़्यादा परेशानी का बास थी, ठीक है। अली हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर इन हिज लाइफ, अली को अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई लेटर नहीं मिला, ठीक है, अली ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई लेटर कभी रिसीव नहीं किया, बट नाउ ही वुड राइज एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन अब क्या करता था कि वो डेली जो है ना 4 o'clock पे जो है मॉर्निंग में 4 o'clock पे उठ जाता था और जो है पोस्ट ऑफिस की तरफ चलने लगता था, विद अ सेरेनिटी बॉन्ड ऑफ होप एंड फेथ, सेरेनिटी मीन्स हल्की सी, मध्यम सी, ठीक है ना, यानी एक उसके दिल में जो एक मध्यम सी उम्मीद पैदा होती थी, ठीक है ना, सेरेनिटी पीसफुल होप जो पैदा होती थी उसके दिल में, और जो उसको यकीन था, ठीक है ना, उसको जो अपने यकीन के साथ, अपनी मध्यम सी होप के साथ, उम्मीद के साथ जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगता था। ही वेटेड फॉर अ लेटर फ्रॉम मरियम,
वो मरियम की तरफ से लेटर का वेट कर रहा होता था। वो रोज़ 4 बजे जाने लगता था और मरियम के लेटर का वेट करता था। द पोस्ट ऑफिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पर्सनल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस था वो जो है इम्पर्सनल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। जो दुनिया की बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग थी उसकी, यानी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, जिसे डिस्क्राइब किया गया था, पहले बताया गया था इसका पूरा कि किस तरह की बिल्डिंग थी ये। तो ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी थी, इम्पर्सनल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत गैर मामूली, बहुत अच्छी सी, बहुत यानी जो एक रूटीन की जो एक बिल्डिंग्स होती हैं, जो एक आम सी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे बहुत हटके एक बहुत अच्छी बिल्डिंग जो है वो पोस्ट ऑफिस की बनाई गई थी उस एरिया में। तो ये बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। इट वाज द इम्पर्सनल, ठीक है, बिल्डिंग, वन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इन द वर्ल्ड, बिकॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिम, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस की जो बहुत अच्छी बिल्डिंग थी वो उसके लिए एक पिलग्रिमेज की जगह बन गई थी। पिलग्रिमेज मीन्स लाइक ज़ियारत, यू कैन से ज़ियारत, ठीक है ना। जैसे लोग जाते हैं, ज़ियारत भी जाते हैं ना, होली प्लेसेस की ज़ियारत भी जाते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ऐसी जगह को पिलग्रिमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो उसके लिए एक पिलग्रिमेज की जगह बन गई थी। मतलब वो ज़ाहिर डेली आता था और बड़े उम्मीद से, होप से और यकीन के साथ जाता था। तो इस तरह से इसको कहा गया कि वो जो है ऐसे जाता है जैसे उसके लिए कोई ज़ियारत की जगह हो, कोई बहुत अच्छी होली प्लेस हो उसके लिए। तो इस तरह से वो डेली वहाँ पे जाया करता है। जैसे मस्जिद जाते हैं लोग, ठीक है ना, डेली जाते हैं, तो वो एक लाइक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है उनके लिए। तो मतलब इसको इस तरह से रिजेम्बलेंस किया गया है। ज़ाहिर है वो पोस्ट ऑफिस था, लेकिन उसको एक रिजेम्बलेंस किया गया है कि वो इस तरह से वहाँ पे जाया करता था। ओके, ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। वो बिल्डिंग का एक ख़ास कॉर्नर ही ऑक्यूपाई करता था, वहीं पे जाके बैठता था, उसी को पे उसका कब्जा किए रखता था, वहीं पे जाके बैठा करता था वो, ठीक है। एंड व्हेन पीपल गॉट टू नो हिज हैबिट, ठीक है, और जब लोगों को उसकी हैबिट के बारे में मालूम हो गया, ठीक है, दे लॉक्ड एट हिम, तो लोग उसके ऊपर हंसने लगे, ठीक है। लोग उसके ऊपर हंसने लगे। द पोस्टमैन बिगन टू मेक अ गेम ऑफ हिम, ठीक है। जो पोस्टमैन थे वहाँ पे, जो डाकिये थे, जो पोस्टमैन थे, वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके साथ खेलने लगे उसकी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। इवन दो देर वॉज नो लेटर फॉर हिम, दे वुड कॉल आउट हिज नेम जस्ट टू सी हिम जंप अप एंड कम टू द डोर, ठीक है। यहाँ तक कि अगर उसे कोई लेटर नहीं भी ज़ाहिर उसका लेटर कोई नहीं होता था, तब भी वो उसका नेम कॉल करते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो किस तरह से जंप करता है और जंप करके किस तरह से वो डोर तक आता है, ठीक है ना, किस तरह से उम्मीद के साथ वो वहाँ पे डोर तक आता है लेटर लेने के लिए। बट विथ बाउंडलेस फेथ एंड इन्फिनाइट पेशेंस, ठीक है ना। बाउंडलेस मीन्स ऐसे यकीन जिसकी कोई हद ना हो, यानी बेहद यकीन, ठीक है ना, बेहद यकीन के साथ और इन्फिनाइट पेशेंस, लामतना ही सब्र, यानी बहुत ज़्यादा सब्र वो कर रहा था। तो वह बहुत बेहद यकीन के साथ, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ अली केम देयर एवरी डे, अली जो है डेली वहाँ जाता था, यानी बहुत यकीन के साथ लोगों के इन बिहेवियर्स को फेस करते हुए भी फेस कर रहा था अली, और सबको फेस करते हुए भी अली जो है बहुत यकीन के साथ, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ वहाँ जाया करता था, वहाँ जाता था, और जो है वो डेली जाता था, जो उसके लिए भी ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन वो वहाँ पे जाया करता था, ठीक है। और जो है अली केम देयर एवरी डे एंड वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, और हमेशा खाली हाथ वापस आ जाया करता था, यानी ज़ाहिर उसका लेटर आता नहीं था बेचारे का, तो जो है वो खाली हाथ वहाँ से वापस आ जाया करता था। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, एज अली वेटेड ही वुड सी द पियंस कम टू कलेक्ट देयर लेटर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे अली वहाँ पे वेट कर रहा होता था, तो वह देखता था कि जो पियंस है वो जो है लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए आ जाते थे वहाँ पर, स्मार्ट यंग मैन इन स्पॉटलेस यूनिफॉर्म्स, ठीक है। जो पियंस थे उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जो है स्मार्ट थे, यंग थे, यंग मैन थे, और जो इनका यूनिफॉर्म था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी स्पॉटलेस में किसी कोई धब्बा नहीं होता था यूनिफॉर्म के ऊपर, साफ़ सुथरा बगैर किसी धब्बे के यूनिफॉर्म होता था उनका। एंड क्रिकिंग न्यू शूज़, क्रिकिंग न्यू शूज़ में बिल्कुल न्यू शूज़, जैसे न्यू शूज़ होते हैं ना, तो उनमें से जैसे बिल्कुल न्यू शूज़ की साउंड अलग होती है, ठीक है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज अ क्रिकिंग साउंड, ठीक है ना। तो न्यू शूज़ की जो है यानी हाई पिच साउंड जो होती है, ठीक है, शूज़ आप देखिए न्यू शूज़ होते हैं उसकी साउंड बिल्कुल अलग होती है, फिर वो पुराने होते आते हैं तो साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाती है उसकी। तो बिल्कुल न्यू शूज़ की जो साउंड होती है उस साउंड के साथ और बिल्कुल स्पॉटलेस यूनिफॉर्म के साथ वहाँ पर यंग मैन आया करते थे और वहाँ से लेटर्स को रिसीव करते थे। विद ग्रेट इंथुसियाज्म
यानी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, इंथुसियाज़म मीन्स जोशो खरोश, ठीक है, विद ग्रेट इंथुसियाज़म, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, ठीक है, यू कैन सी देयर इज़ अ वर्ड इंथुसियाज़म, ठीक है, विद ग्रेट इंथुसियाज़म, ओके, विद ग्रेट इंथुसियाज़म, राइट, बहुत जोश खरोश के साथ जो है दे वुड एक्सचेंज न्यूज़ फ्रॉम देयर वेरियस ऑफिसेस, वो जो है अपने जो वेरियस मीन्स डिफरेंट, ठीक है, जो अपने डिफरेंट ऑफिसेस थे वहाँ से न्यूज़ को जो है वो एक्सचेंज किया करते थे। एवरी नाउ एंड देन द डोर वुड बी थ्रोन ओपन एंड द पोस्ट मास्टर, अ मैन विद अ फेस एज sad and inexpressive as a pumpkin, would be seen sitting on his chair inside, ठीक है। जब भी यानी अब और जब भी दरवाज़ा खुला करता था तो जो है एक पोस्ट मास्टर नज़र आता था जो कि अपनी चेयर पे बैठा होता था, और फेस जो है एक उदास सा फेस होता था उसका, और इनएक्सप्रेसिव, ठीक है, और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे, ठीक है। ऐसा पम्पकिन, जैसे पम्पकिन होता है बिल्कुल सॉलिड टाइप का, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एग्जाम्पल किया है उसके फेस को कि जिसे पम्पकिन यानी जिसे कहते हैं कद्दू, लौकी, ठीक है ना, जैसे वो एक बिल्कुल सॉलिड सा होता है, तो उसका उसकी फेस से राउंड फेस होगा हो सकता है, तो उसके फेस से इसको रिजेम्बलेंस की है कि उसका जो जैसे पम्पकिन होता है इस तरह से इसका उससे रिजेम्बलेंस देखिए कहा है कि इसके पम्पकिन की तरह उसका जो फेस है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, ठीक है, फेस होता था उसका, और वो वहाँ पे जो अपनी चेयर पे वो बैठा होता था, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आज हमने यहाँ तक स्टडी किया है, आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम वर्ड्स मीनिंग विथ यू, ओके, आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट इन द लिस्ट, ओके, मैं आपको लिस्ट पेज की जो है सेंड कर दूँगी वर्ड्स मीनिंग की, जो हमने आप यहाँ इस लेसन में अब तक जो हमने पढ़े हैं उसकी मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आपने जो है सारे वर्ड्स मीनिंग कॉपी में न्यू जर्नल में नहीं लिखने हैं, ठीक है, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, आपने न्यू जर्नल में नहीं लिखने हैं, लेकिन अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यू कैन राइट द वर्ड्स मीनिंग्स इन अनदर कॉपी, ठीक है, किसी कुछ अपने पास कोई रफ कॉपी बना लें या फाइल बना लें कुछ पेजेस लेके, और उस वहाँ पे जो है आप अपने वर्ड्स मीनिंग जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो वर्ड्स मीनिंग कॉपी में लिखने के लिए है वो मैं आपको अलग से दूंगी, बाद में दूंगी, ज़ाहिर है इतने सारे वर्ड्स मीनिंग आपको एग्जाम में नहीं दे सकते, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, लेकिन ज़ाहिर है वो उसका वर्ड्स मीनिंग मालूम होना भी ज़रूरी है, या तो बुक के ऊपर ही लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, या तो बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है, या फिर आप किसी अलग से नोट पैड में इसको नोट डाउन कर लें। मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी वर्ड्स मीनिंग की, और साथ में जो है मैं आपको अभी हम आप जो है कुछ वर्ड्स मीनिंग भी डिस्कस करते हैं, ओके। अभी जो हमने पेज नंबर 76 पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 77 पे जो हमने पढ़े हैं, पेज नंबर 76 पे जो हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, अकस्टम्ड, ठीक है, गेट यूज्ड टू, यानी आदत हो जाना, आदी बना लेना, ऑब्सेशन, या किसी के सर पे मुसल्लत हो जाना, लत पड़ जाना, ठीक है, एन आइडिया दैट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइज द माइंड, ठीक है, ऐसा आइडिया जो है वो सर पे सवार है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सेशन, ठीक है। पार्टेज, तीतर, बटेर, जैसे तीतर नॉट बटेर है, तीतर छः एक बर्ड होती है तीतर, जिसे पता ही होगा आपको, ठीक है ना, तीतर, ठीक है। हेयर, बिग रैबिट, ठीक है, एनिमल लाइक अ रैबिट बट मच लार्जर दैन इट, ठीक है, दैट इज़ द हेयर। क्रोचिंग, अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है, अपने आप को बचा के चलना, सेव करके चलना, बचा के चलना, टू डिफेंड इट सेल्फ और वन सेल्फ, ठीक है। अच्छा, स्क्रब मीन्स खुरचना, आगे घिसट कर बढ़ना, ठीक है, स्क्रबिंग करना, घिसट के बढ़ना आगे, ठीक है, स्क्रब करना। इंस्टिंक्ट, अ पावरफुल इम्पल्स दैट फील्स नेचुरल rather than रीजन, ठीक है, यानी बहुत पावरफुल ख्याल जो है, इंस्टिंक्ट यानी जो ख्याल, शौक जो है, ख्याल या शौक होना, ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई ख्याल रहता है उससे बहुत ज़्यादा ख्याल रहना उस चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 77 पे देखें, वर्ड है bewildered, ठीक है ना, bewildered, दैट इज़ मीन सरप्राइज, हैरत होना, ठीक है, सरप्राइज। टेरर, खौफ, ठीक है। बेयरफिट, हैविंग लॉस्ट अ लव्ड वन थ्रू डेथ, यानी बेयरफिट यानी किसी ऐसा खौफ होना कि किसी को डेथ के थ्रू किसी को अपने प्यारे को खो देना, इस चीज़ का खौफ कहलाता है बेयरफिट, ओके। नेक्स्ट है आपके पास सैनिटी, सैनिटी इज अ वर्ड, ठीक है, यानी सैनिटी होप, ठीक है ना, लाइक नरमी से, मध्यम सी, हल्की सी, जो होप, उम्मीद, ठीक है, पीसफुल, पुरसुकून सी, पुरसुकून, ठीक है ना, पुरसुकून सी उम्मीद, यू कैन से पुरसुकून, ठीक है, पुरसुकून सी उम्मीद या हल्की सी उम्मीद, ठीक है। इम्पर्सनल, गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉर्नलेस फेयर,
ये ना ख़त्म होने वाला यकीन, यानी बहुत ज़्यादा कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडलेस फेथ है, ना ख़त्म होने वाला यकीन। इनफिनाइट पेशेंस, लामतना ही सब्र, यानी बहुत ज़्यादा सब्र, ठीक है, यू कैन से बहुत ज़्यादा सब्र। क्रिकिंग हाई पिच नॉइस, ठीक है, यानी क्रिकिंग में तो आवाज़ है, किसी शूज़ की यूँ आवाज़ जो होती है दैट्स कॉल्ड अ क्रिकिंग, हाई यानी बहुत बड़ी आवाज़, ठीक है। एंथुसियाज्म जोश खरोश, एक्साइटमेंट, यू कैन से ब्रिस्ली, इन हरी फास्ट, ठीक है। आई थिंक ब्रिस्ली पढ़ा नहीं है आपने, एंथुसियाज्म तक तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ओके। ब्रिस्ली पढ़ लिया आई थिंक स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी, ब्रिस्ली नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको हम, नेक्स्ट पैरा में आएगा ये वर्ड ब्रिस्ली, ब्रिस्कली, ठीक है, ये इसमें से हरी। चलें खैर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो वन डे, जो वन डे है यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपने स्टैंड कर लिया, यहाँ तक आपने वी हैव डन इट, ठीक है, एंड कर लिया हमने यहाँ तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वन डे से स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ वर्ड्स मीनिंग्स पे जो है इसको टाइम दें, इसको अटेंशन दें, ठीक है, और इसके स्पेलिंग्स याद करें, और जो है जो मीनिंग्स हैं वो अपने पास बुक में नोट डाउन करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट द वर्ड्स मीनिंग, देन वी विल complete the story, then we will move towards the question answer and the words meaning. I will try to complete the story next lecture, but it's a long story, so let's see, okay. In next lecture I will give you the words meaning to write in the new copies, in new neat copies, okay. अब तक जितने वर्ड्स मीनिंग्स हैं आप सब बुक पे नोट कर लें या अपने पास किसी नोट पैड में नोट कर लें, okay students. On the screen you can look at the list of the words written over the page number 77. The first word it's written here, bewildered, it means surprised, हैरतज़दा। टेरर एक वर्ड इसी के आ गया है जो लिखा नहीं है मैंने, पता ही होगा, खौफ, ठीक है ना, डर, खौफ। बैरेफ्ट, ठीक है ना, दिस अ वर्ड हैविंग लॉस्ट अ लव्ड वन थ्रू डेथ, यानी जो है किसी को डेथ के थ्रू खो देना, ठीक ना, खो देना किसी को, यानी किसी डेथ हो जाए और उसको खो दें तो, ठीक है, वो खौफ जो उसको था, ठीक है। अच्छा, सरनिटी, इस मीन्स नरमी से, मध्यम, पुरसकून सा, ठीक है ना, लाइक सरनिटी होप लिखा हुआ है तो यानी बहुत मध्यम सी इसको होप थी, उम्मीद थी उसको, बहुत पुरसकून सी उम्मीद थी उसको, ठीक है। इम्पर्सनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइक गैर मामूली, यानी ठीक है ना, गैर मामूली। बाउंडलेस फेथ, ना ख़त्म होने वाला यकीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यकीन। इनफिनाइट पेशेंस, लामतना ही सब्र, यानी बहुत ही ज़्यादा सब्र, ठीक है। क्रिकिंग, इट्स द हाई पिच नॉइस, यानी जो शूज़ की साउंड थी उनकी, ठीक है ना, क्रिकिंग नॉइस, सो इट मीन्स हाई पिच नॉइस ऑफ द न्यू शूज़, ठीक है। एंथुसियाज्म, इट मीन्स जोशो खरोश, एक्साइटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिस्कली मीन्स हरीली या इन हरी, फास्ट, तेज़ी से, बहुत तेज़ और बहुत फास्ट मूवमेंट, ओके, दैट इज़ द ब्रिस्कली. So these are the new words which has been used at the page number 77. Please you can note down these words, the meanings of these words over your book or in another notepad. जो घर में आपने notepad बनाई हुई है vocabulary के लिए उसमें आप नोट करिएगा, नीट कॉपी में प्लीज़ नहीं करिएगा। नीट कॉपी के वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए थे. Now students, please look at the page number 83 for exercise. In the exercise you can see here there are the two questions I am giving you in the homework. The question number 1 is that why did someone call out the name Shikari Ali? Okay, why did someone call out the name Shikari Ali? Question number 2, what was Ali's obsession? ठीक है, these are two questions I'm giving you in the homework. You don't have to do it in the neat copy. नीट कॉपी में अभी नहीं करना. नीट कॉपी में मैं खुद आपको जो है ना चेक करने के बाद करवाऊँगी, अभी नहीं करिएगा. हाँ, अदरवाइज in the rough copy or in the another notepad you can do it and you can show me, you can send me on the group, ठीक है ना. तो इसको फिर मैं चेक कर लूँ, उसके बाद आप फिर इसको नीट पे कर सकते हैं. अभी नीट नहीं करिएगा, अभी खुद से you have to write the answers by yourself. ठीक है, ईजी है, आप खुद करिएगा, इसके बाद चेक करवा लें. यू कैन सेंड मी ऑन द ग्रुप, ठीक है ना. इसके क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली लिख के ग्रुप पे आप सेंड करें, मैं चेक कर लूँ, तो फिर आप इसको आप नीट कॉपीज़ में इसको आप कर सकते हैं. ठीक है, मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू ओनली 2 क्वेश्चंस इन द होमवर्क. प्लीज़ डू इट इन द रफ कॉपी, देन शो मी, देन आई विल चेक इट, देन यू कैन डू इट इन द नीट कॉपी. ओके, थैंक यू, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.